अभिवादन दोस्तों। आज फिर से हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। वो है हमारा कौन सा? ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस, राइट? तो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस आर सो इम्पोर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एंड द entrance point of view both. So we are starting with the trigonometrical functions, and we know about the trigonometrical function as we have studied in 10th class. There are the different kind of functions like sin x, cos x, tan x, secant x, cosecant x, and cot x. So we have to consider the previous knowledge of the 10th class or secondary level. We are going towards the graphic analysis of these all functions with the domain and range of these functions, right? So we are starting with our first function, that is sin x, right? Suppose fx is equal to sin x is our function, and we want to draw the graph for this function. So first of all, we should find out the values which are related with the sin x. So I am making the table for it also. As we know, the value of sin 0 is 0. Sin 30, what is the value of sin 30? That is 1 upon 2, and 1 upon 2 means that will be 0.5, right? And sin 45 is 1 upon root 2. That is near about, you can say it is a point 0.7 something, and 707, like 707. And at 60, the value is root 3 upon 2. Root 3 is 1.732 dividing by 2, that is 0.8 and 66 near about. And at 90, the value is 1. And at 120, whenever you find the value of sine 120, so you should go for the quadrant system, right? So 120 is equals to sine of 90 plus theta. That becomes cos of 30 degree, right? And cos of 30 क्या होता है आपका root 3 upon 2. It means this value will repeat, that is 0.866, right? In this way, 135 is again 0.707. At 150, we have 0.5. At 180, it becomes 0, right? So these are the values of sine from 0 to when the value of x is going from 0 degree to 180 degree. After that, in the third quadrant, whenever you take the value 210 degree, again we have to use the formulas like one that is 210 degree can expressed as sine of 180 plus 30 degree, and that becomes minus sine of 30 degree. What is the value of this? That is minus 1 upon 2, so that becomes minus 0.5. Similar way, in this way, this value becomes 707 minus of 0.866, and this is minus of 1. And at 300 value, at 300, again we have to use this quadrant system. 300 is equal to sine of 270 degree plus 30 degree, that becomes minus cos of 30 degree, that is negative of this, that is minus 0.866. So its value will be minus 0.866 and minus 0.707 minus 0.5 then 0. So in this way we can complete the table first. पहले आपको ये सारी वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी. ऑब्वियस सी बात है कि आपको ट्रिग्नोमेट्री में हाउ टू गो फॉर द क्वाड्रेंट सिस्टम वो आपको पता होना चाहिए. तो क्वाड्रेंट सिस्टम के अकॉर्डिंग जब आप ये सारी वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे, तो सारी वैल्यूज फाइंड आउट करने के बाद मैंने क्या किया, ये सारी वैल्यूज निकाल ली. आपका साइन एक्स पर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, अप टू 360 डिग्री, बिकॉज वी नो दैट दिस इज 0 एंड दिस इज पाई अपॉन 2, है ना? और ये वैल्यू क्या होती है आपकी? पाई अपॉन 6. दिस वैल्यू इज पाई अपॉन 4. यू कैन रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पाई ऑल्सो, राइट? इन टर्म्स ऑफ रेडियंस और इन टर्म्स ऑफ डिग्री. आप कोई सा भी प्रॉपर मेथड दे सकते हैं टू ड्रॉ द ग्राफ. So first of all, when you draw the graph for this, so we have to take x along the x-axis, means theta along the x-axis, and y-axis के along हम क्या लेके चलेंगे? आउटपुट लेकर चलेंगे, जैसा कि हमने फंक्शन में स्टडी किया. तो अब मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, रिप्रेजेंट करता हूँ. सपोज दिस इज आवर 4x and this is y. It is 0, right? And this is y-axis and this is our input. So we are taking 0 degree. So whenever you make the function for this, and these are the values of theta for sin x. So what is the value of sin 0? Yes, what is sin 0? That is 0. At 30, its value will be 0.5. So this is our value 0.5. At 45, it is 0.707. At 45, it is 0.707.
and at 60 this is 0.866, at 90 it becomes 1, at 120 it becomes slightly less, and at 135 it becomes nearly this value, and at 150 it becomes 0.5 again, and this is at 0. तो इस टाइप का आपका शेप फॉर्मेशन होगा कर्व का, ठीक है। और फिर जब आप आगे मूव करेंगे तो इन दिस वे वी हैव टू जॉइन दिस ऑल, एंड सिमिलरली वी विल गो अपवर्ड फ्रॉम द नेगेटिव डायरेक्शन, राइट। इन दिस वे वी हैव टू गो हियर इन द नेगेटिव सेंस, देन हियर इट इन पॉजिटिव सेंस एंड सो ऑन। तो इसका जो ग्राफ होता है बेसिकली कैसा होता है, क्रस्ट ट्रफ फॉर्मेशन होती है, ठीक है। क्रस्ट ट्रफ फॉर्म, दिस इज कॉल्ड crust and trough. In this way we have to move like समुद्री लहरें, है ना। तो जिस तरीके से समुद्र में लहरें उठती हैं उस तरीके से इसका ग्राफ होता है। या कभी हमने क्या किया हो, कभी हम क्या करते थे बचपन में, जब हमें कहा जाता था स्कूल के अंदर भैया दरिया साफ करो, है ना, तो हम क्या करते थे, दरी उठा के ऐसे ऐसे करते थे उसको, तो क्या होता है इस तरीके से वेव फॉर्मेशन होती है ना। तो ये वेव फॉर्मेशन जो होती है बेसिकली इट इज अ ग्राफ फॉर द साइन फंक्शन। अब साइन फंक्शन का ग्राफ तो आपने स्टडी कर लिया। अब देखिए इसका कभी भी एंड नहीं होगा, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है व्हेन वी आर यूजिंग इन द कोहेरेंट सिस्टम, सपोज हमने क्या किया, यहाँ से आपने एक रोटेशन लिया है ना, फिर हमें मना थोड़ा किया गया कि आप रोटेशन नहीं ले सकते, इसका मतलब मैं थीटा की वैल्यू और भी ले सकता हूँ, फिर मैं रोटेट कर सकता हूँ। तो इस तरीके से रोटेशन कई बार ली जा सकती है। इसका मतलब जो वैल्यू ऑफ थीटा है दैट विल गोज फ्रॉम 0 to 2 पाई, बट ऐसा भी हो सकता है कि 0 से लेके 2 पाई के बाद अगर हम फर्दर और ज्यादा इंक्रीज करें तो वैल्यूज तो बढ़ेंगी, एक्स की वैल्यूज तो बढ़ेंगी, ऑब्वियस सी बात है, बट जो आउटपुट होगी दैट ऑलवेज लाइंग बिटवीन -1 एंड 1। जो आउटपुट होगी वो हमेशा किसके बीच में लाई करेगी, -1 और 1 के बीच में लाई करेगी। तो इसका मतलब मैं यहाँ पर सिंपल सी बात कर सकता हूँ आपसे कि डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, अगर मैं डोमेन की बात करना चाहूँ, डी ऑफ एफ से दिखा रहा हूं मैं आपको, तो डोमेन क्या है इसका, ऑल रियल नंबर्स, ठीक है। डोमेन आर ऑल रियल्स। एंड व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन, अगर हम रेंज की बात करें तो रेंज जो होगा इसका दैट लाइंग बिटवीन -1 to 1। इसका मतलब -1 भी वैल्यू हो सकती है, 1 भी हो सकती है। तो हम इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, वी विल रिप्रेजेंट बाय द क्लोज्ड इंटरवल, है ना। क्लोज्ड इंटरवल का मतलब क्या होता है, -1 वैल्यू भी हो सकती है, 1 वैल्यू भी हो सकती है, बीच का भी कोई नंबर हो सकता है। तो ऐसे में क्या होगा, दिस इज कॉल्ड डोमेन एंड रेंज फॉर द साइन एक्स फंक्शन। और इसका ग्राफ किस तरीके से आता है, इस तरीके से क्रस्ट ट्रफ फॉर्मेशन में होता है। तो दिस इज आवर ग्राफिक एनालिसिस ऑफ द साइन। सिमिलरली there is no need to study again for the similar graph, that is cos x। तो cos x का जो ग्राफ होता है वो भी इसी टाइप का ही होता है, ठीक है। बस उसमें क्या होता है, cos 0 पर वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। जैसे यहाँ पे 0 पर वैल्यू क्या थी, 0 थी, बट अगर आप cos 0 लेकर चलेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। तो इसका मतलब जो ग्राफ होगा दैट इज सिमिलर, क्योंकि साइन ऑफ 90 प्लस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है। यानी कि ग्राफ जो इट विल शिफ्टेड बाय 90 डिग्री, जो ग्राफ होगा वो 90 डिग्री से क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है ना। ग्राफ इज शिफ्टेड बाय द 90 डिग्री। तो साइन का ग्राफ किस में कन्वर्ट हो जाता है, आपका कॉस में कन्वर्ट हो जाता है, या कॉस का ग्राफ किस में कन्वर्ट हो जाता है, साइन में। हमने पढ़ा हुआ है बचपन में, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा। इसका मतलब देयर इज अ एंगल डिफरेंस ऑफ 90 डिग्री बिटवीन both sine and cos. Therefore, when you take the graph of cos x, there is no need to discuss the cos x again. You can make the cos x graph in similar way as we have done for the sine. So now, suppose I am drawing the graph for cos x, तो it will be 1 and 90 पर वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। उसके बाद फिर 180 पर वैल्यू क्या हो जाती है, -1 हो जाती है। तो ये इस टाइप से इसका फॉर्मेशन होगा। ये जो फॉर्मेशन होगा हमारा, दिस इज फॉर cos x in this way, right? And on this side whenever you go, this becomes 0, then in this way this will be the graph of cos x. So there is no need for the cos x graph again. You can draw the graph of cos x in this way by taking the similar values and find out the outputs and then draw in the graph. And ये हमारा किसका ग्राफ हो गया, आपका sin x का ग्राफ हो गया। एक चीज और देखने वाली है इसमें कि जो ग्राफ है ना इसके अंदर रिपीट होता है। लाइक ये वाली जो पूरी कर्व है ये कहां से कहां तक है, 0 से लेके 2 पाई के बीच में। ऐसे ही ये वाली कर्व कहां से कहां तक है, -90 से
प्लस 90 के बीच में अगर आप देखते हो तो ये वाली फिर इसके आगे और भी मूव कर जाती है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर हम चले तो फिर से ये वाली कर्व क्या होती है, cos x की रिपीट होती है। तो बेसिकली अगर कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज के बाद ग्राफ का रेपिटेशन होता है, सच टाइप ऑफ फंक्शंस आर कॉल्ड पीरियोडिक फंक्शंस। इसके बारे में हम फिर से कभी डिस्कस करेंगे पीरियोडिक फंक्शंस क्या होते हैं। फिलहाल आपको इतनी सी बात मैं आपको बता दूं, अगर किसी ग्राफ में रेपिटेशन होता है, कितने इंटरवल के बाद होता है वो रेपिटेशन आपको मार्क करना होता है। जैसे कि ये वाला जो ग्राफ है साइन एक्स का, ये हर 2 पाई इंटरवल के बाद क्या करेगा, रिपीट करेगा। तो 2 पाई को हम क्या बोलते हैं, पीरियड ऑफ द फंक्शन। तो 2 पाई इज अ पीरियड ऑफ दिस फंक्शन। तो साइन एक्स का भी पीरियड 2 पाई होता है और कॉस एक्स का पीरियड भी क्या होता है, 2 पाई होता है। तो पीरियोडिक फंक्शंस के लिए हम एक अलग से लेक्चर बनाएंगे आप लोगों के लिए, ताकि आप उसको और अच्छे से एनालिसिस कर सकें। फिलहाल अभी हम जो बात कर रहे हैं वो किसके बारे में कर रहे हैं, साइन एक्स और कॉस एक्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो साइन एक्स कॉस एक्स हमारा हो गया। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। साइन एक्स एंड कॉस एक्स का तो हमने देख लिया किस तरीके से ग्राफ ड्रॉ करना है, ऐसे ही आपने टेन एक्स का भी करना है। तो पहले मैं टेन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करता हूं आपके सामने। 0 पर वैल्यू क्या होगी आपकी 0, 45 पर 1, 90 पर इंफिनिटी, 135 पर अगर आप वैल्यू लेंगे तो टेंजेंट की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होती है, इट विल बी -1। 180 पर वैल्यू क्या होगी आपकी, दैट इज अगेन 0। एंड 225 पर थर्ड क्वाड्रेंट में जो वैल्यू होगी दैट इज +1। आफ्टर दैट इट विल बी 270 पर वैल्यू क्या होगी आपकी, इंफिनिटी। 315 पर अगर आप वैल्यू लेंगे दैट इज -1। एंड इस पर आप वैल्यू लेंगे तो क्या होगी आपकी 0। तो इसका मतलब अगर हम 0 पर, 180 पर, 360 पर वैल्यू ले रहे हैं तो क्या आ रही है हमारी, 0 आ रही है। बट हम देखते हैं इसका ग्राफ किस टाइप का आता है। तो वी वांट टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन। सपोज हियर वी हैव x axis and the angles are there, right? So we have taken sum of the angles, 45 degree, then 90 degree, then 135 degree. To understand the graph we are taking sum of the values, 270, 315, 360, right? तो 0 पर तो वैल्यू क्या होगी आपकी 0 है ना। उसके बाद 45 पर वैल्यू क्या होगी आपकी 1 होगी। 90 पर जब आएंगे तो ग्राफ विल गोइंग टुवर्ड्स इंफिनिटी। तो मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, क्योंकि इंफिनिटी का मतलब विल गोज पैरेलल टू सम लाइन टुवर्ड्स upward direction, right? The graph will be in this form because the graph is going towards infinity. So in this way we have to draw this graph. It is going towards infinity whenever the value of theta approaching towards 90 degree, right? And after that here the value is going towards in this way. We are checking the graph, it will goes in this way. Okay, this is towards minus infinity and this is towards infinity. Suppose we are going towards entering into the 90 degree, then it graph will goes towards minus infinity. You are entering into the second quadrant, right? तो सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यू कैसी हो जाती है आपकी, नेगेटिव हो जाती है 10x की। जब 10x की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है इसका मतलब क्या है, जो वैल्यूज होंगी वो डाउनवर्ड होंगी व्हेन यू आर क्रॉसिंग 90 डिग्री, राइट? तो वैल्यूज क्या होंगी, नेगेटिव होंगी। तो नीचे की तरफ ग्राफ होगा 180 पर 0 हो जाएगा। फिर उसके बाद थर्ड क्वाड्रेंट में वैल्यूज कैसी हो जाएंगी आपकी, पॉजिटिव हो जाएंगी, गोइंग टुवर्ड्स द इंफिनिटी। सो हियर द वैल्यू ऑफ दिस यू कैन से इट इज माइनस ऑफ इंफिनिटी because we are entering into the second quadrant, so it becomes 90 minus infinity। and after that 90 onwards जब आप चलेंगे तो ये वैल्यूज इस तरीके से upward direction में जाएगी। तो so it will behave like a increasing function। तो in this way we can make the graph of 10x, right? So what is the domain of this function? Main चीज is what is domain of this function? तो domain of this function will be all reals again, है ना। आप कोई सा भी रियल नंबर एज्यूम कर सकते हैं 10x के केस में। बट एक प्रॉब्लम है, कहां पर वैल्यू अनडिफाइंड आ रही है, एक तो आपका 90 पर अनडिफाइंड आ रही है, एक किस पर आ रही है आपकी 270 पर वैल्यू अनडिफाइंड आ रही है। इसका मतलब डोमेन ऑफ एफ इसका होता है r माइनस ऑड मल्टीपल ऑफ पाई अपॉन 2। और रेंज ऑफ एफ क्या होता है, रेंज ऑफ एफ होता है आपका ऑल रियल्स। देखिए इस बात को समझने के लिए एक और भी आप काम कर सकते हैं। एल्जेब्रिकली अगर हम सोचें, एल्जेब्रिकली हम सोचें मतलब एफ एक्स क्या होता है आपका, एफ एक्स होता है हमारा 10x। 10x का मतलब है साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स।
और हमने जब डोमेन रेंज की बात की थी तो वहां पर क्या कहा था कि अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया, मतलब अगर cos x की वैल्यू 0 हो गई, तो फिर x क्या होगा आपका, x होगा ऑड मल्टीपल ऑफ पाई अपॉन 2। यानी कि cos x की वैल्यू 0 कहां कहां पर होती है, 90 पर होती है ना, पाई बाय 2 पर होती है, उसके बाद फिर 3 पाई बाय 2 पर होती है, फिर 5 पाई बाय 2 पे होती है, फिर 7 पाई बाय 2 पे होती है। इस तरीके से जो वैल्यूज होती हैं वो क्या करती हैं, 90 पर लेंगे आप, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 कुछ भी लेंगे, तो ऐसे में वैल्यू क्या आएगी आपकी, 0 आएगी। तो करना क्या है इसमें, जो आपके पास ये वैल्यूज है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 पर 0 आएंगी, तो इसका मतलब क्या हो गया, डिनोमिनेटर 0 हो गया, तो दिस फंक्शन बिकम्स अनडिफाइंड। जो ये फंक्शन है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, अनडिफाइंड हो जाएगी, नॉट डिफाइंड हो जाएगी। जब नॉट डिफाइंड होगी इसका मतलब क्या हो गया, ग्राफ विल गोस पैरेलल टू एक्स एक्सिस। सिमिलर वे यहाँ पर भी और यहाँ पर भी इस तरीके की कंडीशन आएंगी। तो कहां कहां पर आ रही है कंडीशंस, 90 पर आ रही है। ऐसे ही यहाँ पे नेगेटिव साइड में जाओगे तो ये पॉइंट होगा, ये पॉइंट होगा। तो ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई अपॉन 2 पर जो 10x की वैल्यूज होंगी गोस टुवर्ड्स प्लस इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी। देयरफॉर रेंज ऑफ f विल बी ऑल रियल्स बट डोमेन इज r माइनस ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2, मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 नहीं होने चाहिए, अदरवाइज आप कोई सा भी रियल नंबर ले सकते हैं। दिस इज द ग्राफ फॉर टेंजेंट। नाउ सिमिलरली वी कैन ड्रॉ द ग्राफ फॉर कॉटेक्स आल्सो। कॉटेक्स का भी इसी तरीके से ही फॉर्मेशन होता है ग्राफ बनाएंगे तो। हाँ, मेन चीज क्या है, हमने अब सेक और कॉसेक के बारे में डिस्कस करना है। तो सेक और कॉसेक का अगर हम ग्राफ देखना चाहें, हाँ एक चीज हम आपसे क्लियर कर दें कि जब आप कॉटेक्स का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो उसमें मेन चीज क्या होगी, ग्राफ तो हम इसी तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, बट कॉटेक्स में क्या होगा, अगर सपोज मैं आपके सामने लेता हूं एफ एक्स इज इक्वल्स टू कॉटेक्स, ठीक है, तो उसकी अगर हम डोमेन रेंज की बात करें तो ये बेसिकली क्या होगा आपका cos x अपॉन साइन एक्स। उसी तरीके से आप डिनोमिनेटर को 0 पुट कर दीजिए। तो अगर मैं साइन एक्स को 0 पुट करूंगा तो व्हाट विल हैपन, x विल बी n पाई। n पाई का मतलब क्या होता है, x की वैल्यू पाई भी हो सकती है, 2 पाई भी, 3 पाई भी, माइनस पाई भी, माइनस 2 पाई भी, मतलब इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। यहाँ पर n की जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, दोनों केसेस में जो n है हमारा वो क्या है, n इज एन इंटीजर, इट में बी पॉजिटिव और नेगेटिव, लाइक 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन। देयरफॉर x विल बी n पाई। तो x इज n पाई, आपने x n पाई जो है वो r में से माइनस कर देना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो डोमेन होगा हमारा वो क्या होगा, r माइनस n पाई। और रेंज ऑफ f क्या होगा, रेंज ऑफ एफ क्या होगा, जो आपको वैल्यूज मिलेंगी उसमें भी वैल्यूज क्या होती हैं, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी वेरी करती हैं। इसी टाइप का ग्राफ होता है, बट वो क्या हो जाता है, रोटेट हो जाता है, मतलब ऐसा फॉर्मेशन की बजाय वो ऐसे मूव करना स्टार्ट करता है, ठीक है। इस तरीके से ग्राफ आएगा, होगा इसी टाइप का जैसे यहाँ पर बना है, ये कर्व रोटेट हो जाएगी बस इस फॉर्मेशन में, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, जो आपका रेंज होगा दैट इज ऑल रियल नंबर्स। तो इन दिस वे वी कैन चेक अबाउट द कॉटेक्स, राइट। जैसे हमने साइन एक्स का किया, कॉस एक्स का ग्राफ हूबहू साइन एक्स वाला ग्राफ होता है, बट दे आर डिफर बाय 90 डिग्री। ऐसे ही जो टेन एक्स का ग्राफ किया हमने, वही सेम कॉटेक्स का होता है, बिकॉज टेंजेंट ऑफ 90 माइनस थीटा बिकम्स कॉट थीटा। तो उसमें भी क्या होता है, 90 का डिफरेंस होता है, ठीक है। आप बनाकर देखेंगे तो बड़े आसानी से बन जाता है उसका ग्राफ भी, बट उसकी डोमेन और रेंज हमने ध्यान रखनी है, क्योंकि हम मेन फोकस किस पे कर रहे हैं, बार बार डोमेन एंड रेंज पर फोकस कर रहे हैं। तो हर एक फंक्शन का ग्राफ साथ में उसका डोमेन एंड रेंज, ये चीजें हमने करनी है। तो डोमेन ऑफ एफ इज r माइनस एन पाई एंड रेंज ऑफ एफ इज ऑल real numbers. So in this way we can find the domain and range for cortex. And now we are coming towards what, that is cosec x and sec x. cosec x और sec x बेसिकली क्या होते हैं, these are the reciprocals of sin and cos respectively. तो जब आप cos x का ग्राफ ड्रॉ करेंगे cosec x का, तो वही मैं आपको बता दूंगा cosec x का, उसी तरीके से आप secant x का भी ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। नाउ वी आर टेकिंग एफ एक्स इज इक्वल टू कॉसेक एक्स। देखिए इसके बारे में मैं आपको ज्यादा बात ना करते हुए आपको सिंपल सी बात समझाता हूं। पहले आप क्या करेंगे, पहले आप साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, और साइन एक्स का ग्राफ मैं पहले से ही आपके सामने ड्रॉ कर चुका हूं। तो अगेन आई एम ड्रॉइंग द ग्राफ फॉर साइन एक्स, दिस इज फॉर साइन एक्स, राइट। This is the graph for sin x, right? So this is the 0 and this is it becomes sin pi, it is sin 2 pi, and here the value is pi upon 2, here the value is 3 pi upon 2, here the value is minus 1, and here the value is plus 1, right? So in case of sin x, the value lying between minus 1 to 1, that is the range of the graph,
एंड जो डोमेन होती है वो क्या होती है आपकी ऑल रियल्स, आइदर यू हैव टू गो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, दोनों केसेस में दिस इज आवर माइनस पाई अपॉन टू, दिस इज माइनस पाई माइनस 3 पाई अपॉन टू एंड दिस इज 2 पाई with minus sign, right? So when we need the graph for the cosec x, what will happen? तो सबसे पहले आप देखिए, अगर fx हमारा cosec x के इक्वल है तो cosec x को हम कैसे लिख सकते हैं? 1 अपॉन sin x लिख सकते हैं, और 1 अपॉन sin x लिख सकते हैं। तो sin x को अगर मैं 0 पुट कर दूंगा तो x की वैल्यू क्या आएगी आपकी? n पाई आएगी। तो x की वैल्यू अगर n पाई होगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना भाई, क्योंकि 1 अपॉन 0 क्या होता है? अनडिफाइंड होता है। जब ये अनडिफाइंड होता है तो इसका मतलब क्या हो गया? इसकी वैल्यू अनडिफाइंड हो जाएगी अगर आप एक्स को क्या पुट करोगे? एन पाई पुट करोगे। तो अगर मैंने एन पाई पुट कर दिया तो 1/0 बिकम्स इन्फिनिटी, है ना? तो इसलिए आप जीरो पर ध्यान से देखिए, आई एम मेकिंग एक लाइन हेयर एंड हेयर, इन दिस वे यू कैन ड्रॉ ए लाइन हेयर एंड हेयर, राइट? अब क्या करना है, आपने जब साइन एक्स का ग्राफ प्रिपेयर कर लिया, अब आप ध्यान से देखिए, पर अगर मैं कॉसेक पाई बाय 2 लूंगा तो कॉसेक पाई बाय 2 की वैल्यू भी क्या होती है? 1 होती है। नाउ वी आर डूइंग फॉर कॉसेक एक्स, राइट? तो पाई बाय 2 पर वैल्यू क्या है आपकी? 1 है। पर कॉसेक पाई क्या होगा? कॉसेक पाई होगा हमारा अनडिफाइंड। तो कॉसेक 0 भी अनडिफाइंड, कॉसेक पाई भी अनडिफाइंड। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो ग्राफ है ये बेसिकली इस तरीके से मूव करे। तो करना क्या है, हमने ये जो डॉम है, नीचे की तरफ जो शेप है, इसको हमने क्या करना है? ऐसे कर देना। ठीक है, मतलब इस शेप का आपने क्या करना है? रेसिप्रोकल ले लेना है। अगर आप इस शेप को इस तरीके से फोल्ड कर दोगे तो हमारे पास जो ग्राफ बनेगा वो किसका बनेगा? कॉसेक एक्स का बनेगा। क्यों? क्योंकि कॉसेक एक्स का रेसिप्रोकल है ना, किसका रेसिप्रोकल हो गया? साइन का रेसिप्रोकल हो गया। तो साइन का जो ग्राफ है उसका आप रेसिप्रोकल कर दीजिए, सिंपल। तो जब आप रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या होगा? ये एक सुंदर सा ग्राफ बनेगा। इसको थोड़ा और ऊपर की तरफ अगर आप एक्सटेंड करोगे तो इस तरीके से हमारे पास क्या होगा? इस डायरेक्शन में ग्राफ फॉर्मेशन होगी। अगर आप यहां से करोगे तो इस तरीके से ग्राफ फॉर्मेशन होगी। अगर आप यहां से करोगे तो इस तरीके से ग्राफ फॉर्मेशन होगी। और अगर आप यहां से करोगे तो दिस इज 1 -1 एंड दिस इज आवर वैल्यू। ठीक है, तो इस तरीके से जो मैंने रेड से आपको दिखाया हुआ है, तो रेड मार्किंग जो कर रखी है ये बेसिकली क्या है? कॉसेक एक्स का ग्राफ है। तो आप क्या करेंगे? आप कुछ नहीं करना, इसको आपने क्या करना है? चुपचाप इसको आप हटा दीजिए। अब जैसे ही मैं साइन एक्स के ग्राफ को हटा दूंगा तो मेरे पास जो आपके सामने शेप आ रही है, ध्यान से देखेंगे, ये जो शेप आपके पास आ रही है ये बेसिकली हमारा क्या है? कॉसेक्स का ग्राफ है, कॉसेक एक्स का। अब आप इसको ध्यान से चेक करना चाहे तो कर भी सकते हैं। लाइक हमने यहाँ पे 0 पुट किया तो वैल्यू इज अनडिफाइंड। अगर आप यहाँ 45 पुट करोगे तो 1/√2 दैट बिकम्स √2। तो ये 1 पॉइंट समथिंग वैल्यू आएगी आपके यहाँ पे, है ना, 1.414 नियर अबाउट, है ना। दिस विल बी आवर वैल्यू 1.414। इन दिस वे ये वैल्यू आएगी आपकी। तो इस तरीके से आप जब चेक करेंगे तो ये सारे के सारे जो इनकी आउटपुट्स होंगी, whenever you move from 0 to pi, the outputs lying on this shape, similarly on this shape and so on. So it is the graph of the cosec x। अब मेन चीज यहां पर देखने वाली क्या है कि ये जो पोर्शन है हमारा, ये देखिए, ये जो पोर्शन है हमारा ये ब्लैंक है, ऊपर की तरफ भी नीचे की तरफ भी, मतलब इस पोर्शन के अंदर कोई भी आउटपुट अवेलेबल नहीं है। अब जब इसके अंदर कोई आउटपुट अवेलेबल नहीं है तो आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं, कि जो इसकी रेंज है वो इस रीजन में लाई नहीं करेगी। जो रेंज होगी वो कहां होगी? या तो -1 ऑनवर्ड्स, ओके, डाउन साइड, या फिर 1 ऑनवर्ड्स अपसाइड, राइट। तो इसकी जब हम डोमेन की बात करते हैं तो डोमेन क्या होती है इसकी? r-n पाई, है ना, r-n पाई, क्योंकि n पाई तो लेना ही नहीं है। तो डोमेन ऑफ f क्या हो गया? r-n पाई। और अगर हम रेंज की बात करेंगे तो रेंज क्या होगी आपकी? r-1 यानी कि -1 के बीच की वैल्यूज छोड़कर -1 भी आ सकता है, बट अदरवाइज सारे के सारे रियल नंबर आ सकते हैं, क्योंकि -1 ऑनवर्ड्स या फिर 1 ऑनवर्ड्स हमें सारी वैल्यूज मिल रही है। सो दिस इज द रेंज r-1 ओपन इंटरवल, क्योंकि कॉसेक की वैल्यू 1 और -1 भी आ सकती है, इसलिए ऑल रियल्स इंक्लूडिंग 1 एंड
-1, or you can say r minus open interval -1 1. That will be the range of cosec x. Similarly go for the sec x. अब देखिए sec x क्या होता है? sec x होता है cos का उल्टा. क्या होता है? cos का उल्टा होता है. तो इसके बारे में ज्यादा डीप में ना जाते हुए एफ एक्स हमारा क्या है, सीकेंट एक्स अगर मैं लेकर चलूंगा तो बिल्कुल इन्हीं स्टेप्स पर फॉलो कीजिए जो मैंने आपको बताए हैं. तो एफ एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स. आप इसका रेसिप्रोकल ले लीजिए. कितना आएगा आपके पास? कॉस एक्स आएगा. आप कॉस एक्स को अगर मैं 0 पुट करता हूं तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई अपॉन 2 आएगी. जब x की वैल्यू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई अपॉन 2 आएगी तो इसका मतलब क्या हो गया? डोमेन ऑफ f होगा ऑल रियल्स एक्सक्लूडिंग ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2. और रेंज क्या होगा? रेंज होगा आपका अगेन वही r माइनस वन वन. क्यों? वही सेम कंडीशन, क्योंकि साइन और कॉस का ग्राफ मिलता जुलता है. आप क्या करेंगे? कॉस के जो डॉम्स होंगे उनको उल्टा करते जाएंगे. ठीक है, तो हमारे पास किसकी फॉर्मेशन होगी? sec x की फॉर्मेशन होगी. तो इन दिस वे वी कैन draw all the trigonometrical functions and we can study about their domain and ranges. ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट था. आप देखिए जब आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कर लिए, इसके बाद फिर हम बात करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के बारे में. फिलहाल आपको इतना ही करना है आज के लेक्चर में. जस्ट गो फॉर द trigonometrical functions and meet you soon with our next video. Please wait, watch and see our channel. See every video one by one. Thank you.